very good morning to all of you students. Today we are going to discuss the features of partnership form of organization. Yesterday we had already discussed two of its features, that is formation and liability. Now coming to the next feature, which is risk bearing, right? So, bete partners, they bear the risk of the business as a team, right? Because two or more than two persons, when they join hands together to run a business, so obviously they are going to bear the risk as a team. Now the ratio in which they are sharing their profits, in the same ratio they will be sharing their losses in the event of loss, right? So it is not always the situation that if two partners are there, they will be sharing profits in the ratio 50s to 50, that is 1 by 2 and 1 by 2. No, but it is always there in the agreement. दो या दो से पार्टनर्स आपस में किस रेशो में प्रॉफिट्स शेयर करेंगे, वो उनके अग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. हो सकता है देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी. सी कहता है कि मेरे को 1/4 प्रॉफिट्स लेने हैं, ठीक है, बाकी जो प्रॉफिट्स 3/4 बचेंगे उसका हाफ और हाफ, that will be shared by A and B. So that very much depends upon their agreement, upon the capital contributed by them. So in the ratio in which they decide to share their profits, same ratio they will be sharing their losses if the firm is incurring it. ठीक है, सो अगर कल को फर्म को लॉसेस होते हैं तो वो उसी रेशो में शेयर किए जाएंगे पार्टनर्स के बीच में, जिस रेशो में वो प्रॉफिट्स शेयर करने का उन्होंने अग्रीमेंट किया हुआ है. सो व्हिच मींस एज अ टीम दे आर बेयरिंग द रिस्क ऑफ द बिजनेस. So next feature bete decision making and control. Now because partners are either two or more than two, so they take the collective responsibility of decision making. Whenever they take decisions, they take the decisions with a mutual consent. ठीक है, आपस में हो सकता है अग्रीमेंट में उन्होंने डिसाइड कर लिया हो कि मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजंस ये लेगा, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस ये वाला पार्टनर लेगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजंस ये पार्टनर लेगा. ठीक है, तो इफ इट इज मेंशन्ड इन द agreement, that will be followed. If there is no such thing in the agreement as who will take what decisions, then they will be taking the decisions with the mutual consent. If they want to buy a new plant, say, which is worth say 1 crore of rupees, they will sit together, they will foresee the pros and cons of different projects, and then they will make decision whether they should buy the plant or not and which plant they should buy. ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज है पार्टनरशिप की, वो जॉइंट एफर्ट ऑफ द पार्टनर से ही मैनेज होती है. ठीक है, coming to the next feature, which is continuity. It is just like sole proprietorship, it is characterized by the lack of continuity of the business. If any of the partner dies, becomes insane, or retires, or become insolvent, or is imprisoned. ठीक है, किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या वो बीमार हो जाता है, या उसको जेल हो जाती है, या वो रिटायर ही हो जाता है, तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल अग्रीमेंट. तो अगर लीगल अग्रीमेंट चार पार्टनर्स के बीच में है, ए बी सी डी, और उन चारों ने इसके ऊपर साइन किए हुए हैं, और बी कहता है कि मेरे को रिटायर होना है, या डी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ये पार्टनरशिप अग्रीमेंट वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि डी इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ पार्टनरशिप. So which means this agreement does not exist anymore. It is invalidated. ये validate नहीं है. ठीक है, इसकी कोई अब वैलिडिटी नहीं रही. तो अग्रीमेंट की वैलिडिटी नहीं है,
तो पार्टनरशिप की भी कोई वैलिडिटी नहीं है। हाँ, अगर ए, बी और सी बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन साइन अ न्यू अग्रीमेंट। ए, बी, सी अपना नया अग्रीमेंट साइन करेंगे जिसमें वो लिखेंगे कि कौन सी रेशो में उनको प्रॉफिट्स शेयर करने हैं। ठीक है, ये सारी डिसीजंस वो लेंगे, अग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज करेंगे एंड देन दे कैन कंटिन्यू द बिजनेस। ठीक है, सो बेटे पार्टनरशिप लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है इसमें। अगर एक कोई भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो रिटायर हो जाता है, वो उसको जेल हो जाती है, या वो यूनेटिक हो जाता है, या बीमार हो जाता है, in such a situation partnership comes to an end. Yes, if these the remaining partners they want to continue with the business, they can do so, but then they will form a new agreement, right? Next बेटे number of partners, and again a very important feature. अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको पार्टनरशिप आपने चूज कर लिया, आपने कहा कि अब आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं, so you should know what is the minimum and what is the maximum number of partners which can be enrolled in your firm. तो बेटे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स तो 2 ही है, हमेशा 2 ही रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की जो प्रोविजन है अब उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। पहले 10 या 20 लिमिट हुआ करती थी, लेकिन जब से नया कंपनीज एक्ट आया है उसमें इवन दो इट इज अ कंपनी एक्ट, लेकिन उसमें एक पेज पार्टनरशिप को डिवोट किया है गवर्नमेंट ने, वो है सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट। नया कंपनीज एक्ट आया है, पहले कंपनीज एक्ट जो था दैट वाज ऑफ 1956। नाउ द न्यू कंपनीज एक्ट इज कंपनीज एक्ट 2013। बेटे हर लॉ में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होती रहती है। 1956 का हमारा ये एक्ट बना हुआ था कंपनीज एक्ट, अब उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत थी तो हमने एक नया एक्ट पास कर दिया जो कि है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो पहले तो 464 में ये लिखा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 100, लेकिन फिर भी उसके बाद फिर 2014 में कंपनीज एक्ट में एक अमेंडमेंट आई एज पर दी रूल 10। Rule 10 of the Companies Miscellaneous Rules 2014, at present the maximum number of partners can be 50. So आप 100 वाली प्रोविजन चाहे भूल जाइए, आप सिंपली लास्ट वाली लाइन आपकी बुक में जो दी हुई है एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज miscellaneous rules 2014, at present the maximum number of partners can be 50. ठीक है, so 2 to 50 number of partners, minimum number of partners can be 2 and maximum number of partners in a partnership firm can be 50. Is it clear bete? Anyone having any doubt? Okay, so let's move ahead with the next point, next feature. This feature is that of mutual agency. 7th feature है बेटे हमारा, ये है mutual agency. What is the meaning of this feature? See, there are 2 partners A and B. ठीक है, इनमें म्यूचुअल एजेंसी है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब हमने जब पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताई तो मैंने यही बताया, they agree to share the profits of the business which is carried on by all or one of them acting for all. ठीक है, इसका मतलब ये है कि every partner is both an agent as well as principal. हर पार्टनर जो है
वो बेटे एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। एजेंट कौन होता है? एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि वो दूसरों को रिप्रेजेंट करता है तो इसीलिए वो उनको बाइंड करता है अपने एक्शन से। ठीक है, लाइक ए एंड बी आर टू पार्टनर्स, तो हमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेनी है। ए को ए बाहर गया हुआ है बिजनेस के मामले, बिजनेस से रिलेटेड, वो मेरे को फोन करके कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। ठीक है, हमें हमारी फर्म को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो बताओ मैं क्या करूं। मैंने उसको बोला जो आपको ठीक लगता है वो आप कर लो। ठीक है, अब वो इसका मतलब वो मेरे बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। उसने डिसीजन ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ठीक है, और अब ये जो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कल को अगर ये मटेरियलाइज नहीं होता, लेट अस सपोज ए और बी ने दोनों ने मिलके 50 लाख रुपए लगाए और ये जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसकी प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। कल को जो दूसरी पार्टी थी जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो डिनाई कर गए, वो कहते हैं कि अब हमको ये माल नहीं चाहिए, आप अपने पास ही रखो अपना सामान, हमें आपकी क्वालिटी नहीं पसंद है तो हमने आपसे ये सामान नहीं उठाया। अब इनका नुकसान हो गया, उन्होंने इतने पैसे लगाए हुए थे, सारा का सारा माल धरा का धरा रह गया। ठीक है, अब बी कहता है ए को कि भी मैंने तो नहीं ये नुकसान बियर करना, तूने डिसीजन ली थी, तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ठीक है, ये नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्या बी का ये कहना सही है? एनीवन, वुड यू लाइक टू शेयर योर ओपिनियन? Is B now not bound by the act of the A? Okay, Harshika says no. B cannot say so. Why can B not say so? Because A is taking decisions on the behalf of B. Therefore, he binds B by his actions. वो B को अपने एक्शन से बाइंड कर सकता है। यही मतलब है किसी के एजेंट होने का। when you are acting on behalf of other, that is when you are representing other person, it simply means you are acting as his agent and you are binding him by his acts. I am explaining again, अगर आपको complicated लग रहा है बेटे, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ पे कोई काम करता है, ठीक है, तो वो उसका एजेंट होता है। तो क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसको अपने एक्शन से बाइंड कर देगा। लेट अस सपोज आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टीचर से, ठीक है, आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव एक चुना, आपने उसको एप्लीकेशन लिखी, आपने रिप्रेजेंटेटिव को प्रिंसिपल के पास या टीचर के पास भेज दिया सारी क्लास के साइन करके। ठीक है, तो सारी क्लास के साइन नहीं भी हुए, वो आपने अपने रिप्रेजेंट एक पर्सन को एज अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया, ठीक है, और आपने उसको भेज दिया। अब प्रिंसिपल को लगा कि ये आप सबका गलत डिसीजन है जो भी आप लेके आए हो, उन्होंने आपको पनिशमेंट दे दी और उन्होंने बोला कि आपको एक पीरियड पूरा सारा पीरियड खड़े रहना पड़ेगा। अब आपका रिप्रेजेंटेटिव जब प्रिंसिपल की ये बात लेके गया, ठीक है, तो आप लोगों को पनिशमेंट मिल रही है उसके आपको रिप्रेजेंट करने के कारण, तो आप लोग कह सकते हो नहीं हम तो नहीं खड़े होंगे। आपको कहा है मैम ने आप खड़े हो, वी आर नॉट बाउंड बाय योर एक्शंस। बेटे जब वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के गया तभी आप उसके एक्शन से बाउंड हो गए। जो भी डिसीजन लेगा यू विल बी बाउंड बाय हिज एक्शन। इज इट क्लियर? तो कल को याद रखना, अगर आप किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजते हो अपने आप को, यू आर बाउंड बाय हिज एक्शंस। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चे, थम्स अप दे दो इफ इट इज क्लियर। तो so every partner is an agent of another partner. How? Because he represents the other partners, and when he represents the other partner, he is binding them through his acts. Is it clear? Now he is the principal as well. Principal का मतलब
he too is bound by the acts of other. अभी ये बी को बाइंड कर रहा है अपने डिसीजन से, यानी इसने जो डिसीजन लिया उसके कारण बी भी अफेक्ट हो रहा है। कल को बी जो डिसीजन लेगा उससे ये भी बाउंड होगा, which means he is a principal as well, as he is also bound by the actions of the other partners. Clear बच्चे? Now these are the features of partnership form of organization. From this we can find out their various merits as well as demerits of partnership form of business. But first merit, easy to form, easy to close. How partnership comes into an existence? It comes into an existence by an agreement, legal agreement. Okay, so just they have to, make one agreement. They have to put their signature, and partnership form is formed. There is no need for the registration of the firm. ठीक है, आपको फर्म को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है। हाँ, करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, उसके कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको, लेकिन कोई लीगल व्यू पॉइंट से कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना। ठीक है, इसी तरह से क्लोजर ऑफ द फर्म इज आल्सो वेरी इजी। अगर आपको लगता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपको कोई लीगल नोटिस नहीं देना, आपका अपना जो अग्रीमेंट है उसको आप डिसॉल्व कर दीजिए, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेरिट ऑफ partnership form of organization. It is quite easy to form and to close down. Next bit is decision making. Sole proprietor में हमने एक फीचर किया था कि वो डिसीजन मेकिंग जो है उसकी प्रॉपर नहीं रहती है। वो सारी डिसीजंस खुद अगर लेता है तो हो सकता है वो हर फील्ड में इतना स्पेशलिस्ट ना हो, जिस कारण से उसका बिजनेस सफर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर दो या दो से ज्यादा लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल को तो हम नहीं कह सकते ना, प्रोडक्शन भी देखो और फाइनेंस भी देखो, सब कुछ देखो। लेकिन जब नंबर ऑफ पार्टनर्स ज्यादा हो जाते हैं तो उससे काम का बर्डन कम हो जाता है और डिसीजंस जो है दे आर लाइकली टू बी मोर बैलेंस्ड। नेक्स्ट बेटे, मोर फंड्स, क्योंकि पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पर्संस ज्यादा है so they will bring about their own capital to the business. So in this way more funds can be used for the setting up of your business. Sole proprietor में क्या होता है, एक सिंगल पर्सन के फंड्स होते हैं। HUF फैमिली में भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन पार्टनरशिप में लेट्स से दो पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं और उनको लगता है वो बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो एक या और दो पार्टनर्स और ऐड कर सकते हैं depending upon their requirement. Next bit is sharing of risk. This is again a very important merit of partnership. Sometimes you are so scared, आपको पास आइडिया बहुत अच्छा है, आपके पास कैपिटल है, ठीक है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि कहीं आपका सारा का सारा पैसा डूब ना जाए, तो क्योंकि आपको पता है कि जितने भी लॉसेस होंगे वो आपको बियर करने पड़ेंगे। सो ऐसी सिचुएशन में अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हो तो आपके जो लॉसेस हैं वो शेयर हो जाएंगे पार्टनर्स के साथ। ठीक है, सो शेयरिंग ऑफ रिस्क इज अनदर मेरिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन बेटे सीक्रेसी, सीक्रेसी मेंटेन रहती है पार्टनरशिप में। कैसे सीक्रेसी मेंटेन रहती है, जो पार्टनर्स होते हैं उनको अपने अकाउंट्स, अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कराने की कोई लीगल कंपल्शन नहीं होती। अगर हम इसको कंपेयर करें जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ या कॉर्पोरेट, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वन एंड सेम थिंग बेटे। सो इफ वी कंपेयर दिस फीचर विद corporate form of organization, they are required to publish their accounts, they are required to publish their annual reports. So in this way all the confidential matters they come into limelight, whereas in partnership form of organization there is no need to publish your accounts. आपको legal कोई compulsion नहीं है। जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कहीं ये नहीं कहता है कि आपको अपने
जो रिपोर्ट आप अपने जो अकाउंट्स हैं या एनुअल रिपोर्ट है उसको पब्लिश कराने की जरूरत है. So these were certain merits of the partnership form of organization. Definitely, considering these merits, you can see that this is far better than sole proprietor form of organization. But then there are certain limitations of the partnership form of organization also. But limitations इसकी क्या है? पहली, unlimited liability. Partners have unlimited liability, which means in case their business assets are insufficient to pay off their business debts, their personal assets can be used to pay off business debts. तो इस केस में बेटे ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है. दूसरी बात, इनकी लायबिलिटी जॉइंट भी होती है और इंडिविजुअल भी होती है. तो इंडिविजुअल लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक पार्टनर के पास पैसे नहीं है लेकिन दूसरे के पास है, तो वो दूसरे के बिहाफ पे आज उसको थर्ड पार्टी का कर्जा उतार देना पड़ेगा, कल को वो पार्टनर से ले सकता है. तो इन दिस केस बेटे आप ये सोचोगे कि अगर मेरे पास पर्सनल एसेट ज्यादा है तो मेरे को तो पनिशमेंट हो गई, मुझे तो एक ही कर्जे भी उतारने पड़ गए. मैंने अपने पर्सनल एसेट्स खुद के एफर्ट से बनाए हैं, लेकिन मुझे ए का कर्जा उतारने में भी लग गया. कल को मैं ए को मांगता रहूंगा, ए से मांगता रहूंगा, है ना. आपने थर्ड पार्टी के तो उतार दिए, थर्ड पार्टी तो चली गई, लेकिन आप खुद कर्जेदार बन गए. वो कैसे? आपने जो ए के बिहाफ पे कर्जा उतारा है, आपको ए से हमेशा मांगना पड़ेगा. ठीक है. तो ये जो अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो फीचर है, दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बेटे लिमिटेड रिसोर्सेज, नेचुरली आप बोलोगे कि अभी मैम ने कहा था कि रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं as compared to sole proprietorship. Yes, partnership form of organization can arrange more funds. लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें बेटे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है, आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हो, लेट्स से आप ऑटोमोबाइल कंपनी खोलना, ऑटोमोबाइल्स बनाना चाहते हो, तो उस केस में पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. ठीक है. सो उनको भी पार्टनरशिप में भी you cannot expand beyond a certain limit, whereas corporate के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो कॉर्पोरेट से हमारे पास ज्यादा फंड्स आ सकते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर ऑफ द बिजनेस यू हैव टू डिसाइड. अगर आपको लिमिटेड रिसोर्सेज की जरूरत है, यू कैन गो इन फॉर पार्टनरशिप. अगर आपको बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है, then you can't go in for partnership. You have to select corporate form of organization. Next bit, possibility of conflict. There is always a possibility of conflict. Conflict means लड़ाई झगड़े. क्योंकि देखो बेटे म्यूचुअल एजेंसी है, ए ने डिसीजन लिया, बी को बाइंड कर दिया. अब कल को बी कहेगा ना, तू सोच समझ के क्यों नहीं तूने डिसीजन लिया, तूने कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन किया, तूने एडवांस पेमेंट क्यों नहीं ली, ठीक है, तो तूने उसके साथ कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया, एंड सो ऑन. सो अगर ऐसे बार बार ऐसी चीजें होती हैं कि ए के कारण बी को या बी के कारण ए को नुकसान होता है, सो देयर मे बी द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है. वैसे भी कहते हैं ना, जहाँ पे दो लोग होते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता ही होता है. सो दिस मे हैपन इन केस ऑफ पार्टनरशिप आल्सो. देन बेटा देयर इज अ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस. लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस कैसे? लोगों का पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में ज्यादा फेथ नहीं है. वो क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को अपने अकाउंट्स पब्लिश कराने की कोई कंपल्शन नहीं है. कंपनी अपने सारे अकाउंट्स पब्लिश कराती है, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कराती है, तो आप कंपनी के बारे में उसके अकाउंट्स को देख के उसके बारे में डिसीजन ले सकते हो कि ये कंपनी सॉलिड है या नहीं. लेकिन पार्टनरशिप के बारे में आप ये डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि देयर इज कॉन्फिडेंशियलिटी. कोई भी अकाउंट्स कितने प्रॉफिट्स को अर्न कर रहे हैं, कितने लॉसेस में गए, कितनी उनकी आरओआई है, कुछ भी जनरल पब्लिक को नहीं पता होता.
तो इसीलिए लोगों का कॉन्फिडेंस इसके ऊपर नहीं बन पाता. Then one more limitation is there, which is lack of continuity. बेटे किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, टायर हो जाता है, ल्यूनेटिक हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. ठीक है. सो दिस लैक ऑफ कंटिन्यूटी is of course the limitation of partnership form of organization. So these were the limitations of partnership form of organization.